مجھے آके بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ روز مجھے بھابھی کے کمرے سے رات کو یہی آواز آتی اور میں حیران ہوتی کہ گھر میں میرے اور بھابھی کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تو بھابھی کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایک دن میں چوری چوری بھابھی کے کمرے میں شام کو ہی چھپ کے بیٹھ گئی۔ ٹھیک 12 بجے کھڑکی کھلی اور یہ دیکھ کے میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں کہ بھابھی رات کے ٹھیک 11:50 ہوئے تھے۔ میں دبے پاؤں بھابھی کے کمرے میں آ کے بیڈ کے پیچھے بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج رات اس واردات کا راز کھلنے والا تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے رات کے اس پہر بھابھی کے کمرے سے آواز آتی تھی، مجھے آ کے بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی تو 12 بجنے میں اب صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ وقت ہونے ہی والا تھا جب یہ پتہ چل ہی جائے گا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ گھر میں صرف میں اور بھابھی ہی رہتے تھے، پھر بھابھی کو آخر کس سے خطرہ تھا؟ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ ٹھیک 12 بجے کھڑکی کھلی اور یہ دیکھ کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میرا دماغ چیخنے لگا، میری آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ رات کا وہی وقت اور وہی آواز مگر منظر۔ میرا نام رانیہ ہے۔ میں، میری امی اور میرے بھائی احمد، بس انہی 3 افراد پہ ہمارا چھوٹا سا خاندان مشتمل تھا۔ ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے جس میں دھوپ کم اور مشکلات زیادہ داخل ہوتی تھیں۔ ابا کی وفات ہمارے بچپن میں ہی ہو گئی۔ مجھے ٹھیک سے یاد بھی نہیں کہ ان کا چہرہ کیسا تھا، بس اتنا معلوم ہے کہ امی نے ان کی تصویر کو ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھا۔ ابا کے جانے کے بعد ہماری زندگی اندھیرے میں ڈوب گئی، مگر میری امی وہ عورت تھیں جو فولاد کا ارادہ رکھتی تھیں۔ بھری جوانی میں بیوہ ہونے کے بعد خاندان والوں نے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دیا، مگر امی نے سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا۔ ساری رات جا کے وہ لوگوں کے کپڑے سیتی تھی تاکہ ہم دونوں بہن بھائیوں کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ میں نے ان کی انگلیوں پہ سوئیوں کے نشانات دیکھے تھے۔ اکثر رات کو جب میں انہیں سلائی کرتے دیکھتی تو کہتی تھی، امی آپ سو کیوں نہیں جاتی؟ وہ کہتی اگر میں سو گئی تو تم دونوں کیسے پڑھو گے؟ مگر ان کی آنکھوں میں گہری تھکن تھی۔ وہ بھائی سے کہتی، احمد تمہیں پڑھ لکھ کے بہت بڑا آدمی بننا ہے اور ہمارے سارے دکھ درد دور کرنے ہیں۔ ہمارا سارا گھر، ہماری ساری امیدیں، سب کچھ بھائی احمد پہ مرکوز تھا۔ ہم نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ جب احمد بڑا ہو جائے گا اور اس کی اچھی نوکری لگ جائے گی تو یہ کرائے کا گھر، یہ امی کی محنت، یہ ساری جلاوطنی ختم ہو جائے گی۔ بھائی بھی ہمیشہ ہم کو یہی یقین دلاتے تھے۔ مجھ سے کہتے تھے میں بڑا ہو جاؤں گا تو پھر امی کو آرام دوں گا، میں انہیں ایک نیا اپنا ذاتی گھر خرید کے دوں گا جہاں انہیں کرائے کی فکر نہیں ہوگی۔ اور میں کہتی ہاں بھائی، ہم دونوں مل کے امی کا خیال رکھیں گے۔ امی کو احمد سے بہت توقعات تھیں۔ ان کا دن بھائی کو پڑھانے اور رات ان کے لیے محنت کرنے میں گزرتی تھی۔ ہم دونوں کو یقین تھا کہ وہ ضرور ایک دن ہماری کایا پلٹ دے گا اور ہمیں غربت کی اس دلدل سے نکالے گا۔ ہم اسی آس پہ جی رہے تھے کہ اب مشکل وقت ختم ہونے والا ہے، مگر پھر ہماری زندگی میں نور داخل ہوئی جس نے ہماری چھوٹی سی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ ہمارا امیدوں کا مرکز، ہماری خواہشوں کا سہارا ایک عاشق بن چکا تھا جو اب ہماری نہیں، نور کی خواہشات پوری کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ میں نور سے ہی شادی کروں گا، چاہے جو بھی ہو جائے، وہ میری پسند ہے اور میں اسے اپنا بنا کے ہی رہوں گا، احمد بھائی نے بڑے عزم سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں نور کو حاصل کرنے کی شدید پیاس چھلک رہی تھی جو ان کے اندرونی اضطراب کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ امی اور میں کھانا پکا رہے تھے اور وہ اس وقت باورچی خانے کے دروازے کی چوکھٹ پہ ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ بیٹا، جذبات میں بہہ کے کوئی جذباتی فیصلہ مت کرو، امی نے بڑی نرمی سے انہیں سمجھایا۔ ان کی آواز میں ماں کی گہری فکر اور تجربے کا نچوڑ تھا۔ وہ احمد کی آنکھوں میں محبت کی جنونیت دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم نور کو پسند کرتے ہو، مگر تم اپنی حیثیت تو دیکھو، ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ سوچو، کیا وہ لڑکی جسے عیش و آرام کی عادت ہے تمہاری اس محبت کو سمجھے گی؟ امی پلیز، میں اس معاملے میں بالکل بھی کوئی مخالفت سننے کو تیار نہیں ہوں۔ بھائی نے دیوار کی طرف منہ کر لیا جیسے وہ امی کی باتوں سے اتفاق نہ کر رہے ہوں۔ ان کا چہرہ سخت اور اڑیل ہو چکا تھا۔ آپ مجھے نہیں سمجھ پائیں گی، یہ صرف جذبات نہیں ہے، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ اگر میں اسے کھو بیٹھا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ میں سب کچھ سنبھال لوں گا، آپ بس میرا ساتھ دیں۔ امی کے چہرے پر مایوسی کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور خاموش ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت احمد کو روکنا ممکن نہیں تھا، اور بس اسی جذباتی اصرار اور ضد کے ساتھ اگلے ہی دن نہایت سادگی کے ساتھ میں، امی اور بھائی نور کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ہر قدم پہ مجھے اپنا کرائے کا گھر اور اس خوبصورت کوٹھی کے درمیان کا فرق کھل کے محسوس ہو رہا تھا۔ اندر پہنچ کے جب رسمی تعارف ہو چکا اور بھائی نے نہایت احترام سے نور کا ہاتھ مانگا تو نور کے والد نے ایک لمبی سانس لی
उनका लहजा बेहद ठंडा था। अहमद, हमें आपकी ईमानदारी पे भरोसा है और नूर की आप में दिलचस्पी भी है, मगर हमारा एक असूल है, बल्कि हमारी बेटी का हक है कि निकाह से पहले आपको नूर के नाम एक घर लिखवाना होगा। ये शर्त सुन के हम सब पे ऐसी खामोशी छा गई जैसे सबके गले में अल्फाज अटक गए हों। भाई के हाथ में थामी हुई चाय की प्याली लरस गई और उनके चेहरे का रंग सुर्ख होने के बाद फौरन सफेद पड़ गया। उनके माथे पर पसीने के मोटे कतरे निकल आए। वो जो लम्हा भर पहले फाते की तरह गए थे, अब वो एक बेबस कैदी की तरह महसूस कर रहे थे। उनका जज्बाती नूर के वालिद की महंगी शर्त के सामने रेजा रेजा हो चुका था। एक घर। भाई के मुंह से ये लफ्ज बमुश्किल निकल पाए। वो जानते थे कि उनकी सारी जमा पूंजी उस एक शर्त के सामने बेवकूफ थी। वो मोहब्बत की जंग जीतने गए थे, मगर उनके सामने एक सौदा रखा जा चुका था। भाई हड़बड़ा गए। हाँ, एक घर। अगर ये आपके बस की बात नहीं है तो बताइए। वैसे भी नूर का एक और भी बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है, फिर हम वहां बात पक्की करने का सोचेंगे। भाई ने कुछ देर सोचा। जी, मुझे शर्त कबूल है, मैं घर का इंतजाम कर लूंगा। और हम वापस आ गए। अहमद, ये क्या किया तुमने? हम तो खुद किराए के घर में रहते हैं, मकान कहाँ से लाओगे? अम्मी ने भाई से पूछा। अम्मी, फिक्र न करें, नूर मेरे बगैर नहीं रह सकती। उसने कहा है कि जल्द कुछ करो वरना मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। नूर का यही एक जुमला भाई को ले डूबा। अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने कह दिया ना, मैं इंतजाम कर लूंगा। बेटा, तुम पागल तो नहीं हो गए? हमारा अपना सिर छुपाने को छत नहीं है, तुम एक अमीर लड़की के लिए फौरन मकान लिखवाने की हामी भर आए। अम्मी, आप नूर को नहीं जानती, वो मेरी जान है, उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। इस अमीर वालिदैन की बेटी को तुमसे ही क्यों शादी करनी है? मैंने अचानक दखल दिया। मैं बावर्ची खाने से चाय लेके आई थी। रानिया, तुम्हारी आदत है हर बात में दखल देने की। भाई ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। अहमद, उसे ही कह रही है। अम्मी ने मेरा साथ दिया। वो लोग तो चाहते हैं कि तुम उसके नाम घर लिखवाओ, और तुम उसे 2 कमरों का मकान कहाँ से दोगे? यही तो मसला है। उसके वालिद ने साफ कह दिया कि लड़की के नाम अलग मकान की रजिस्ट्री होगी, वरना वो रिश्ता किसी और को दे देंगे जो हमसे 1000 गुना बेहतर हालात में है। तो फिर उसी के साथ उसकी शादी होने दो। तुम कौन सा शाहरुख खान हो कि लड़की तुम्हें देख कर दीवानी हो जाएगी? मैंने मेज पे चाय का कप रख दिया। नूर ऐसी नहीं है भाई। गुस्से से खड़े हो गए। उससे खुद मुझसे कहा है कि अहमद, जल्दी करो, अगर तुमने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो मैं बेबस हो जाऊंगी और मेरी शादी किसी और से हो जाएगी। फिर तुम देखते रह जाओगे। नूर ने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अम्मी ने कहा कि अगर वो सच्ची होती तो तुम्हारी माली हालत देख के ये डिमांड कभी ना सुनाती। अम्मी, वो मेरी मोहब्बत पे भरोसा कर रही है, मुझे खुद मौका दे रही है कि मैं उससे शादी कर लूं। इस वक्त मेरे पास कुल मिला के 8 लाख रुपए हैं। इसमें तो इस शहर में एक मामूली छोटा सा प्लॉट भी नहीं मिल सकता, मकान तो दूर की बात है। मैंने कहा, जब हकीकत यही है तो फिर अपने दिल को मजबूत करो। इश्क अंधा होता है मगर हिसाब किताब नहीं भूलता। मैं हार नहीं मान सकता। भाई ने एकदम उठ के अपना सर झटका। अगर मैंने ये चांस गवा दिया तो पूरी जिंदगी से गम में रहूंगा कि नूर मेरी हो सकती थी और मैंने एक मकान की वजह से उसे खो दिया। मगर मकान आसमान से तो नहीं गिरेगा ना अम्मी? अम्मी ने उसे समझाना चाहा। भाई की आंखों में एक नई चमक आ गई। मेरे पास एक रास्ता है, मगर वो थोड़ा मुश्किल है। कौन सा रास्ता? मैं और अम्मी दोनों मुतजस्सिस हो गए। मेरा दोस्त अली, याद है ना वो आपको? वो जो 5 साल पहले बाहर के मुल्क चला गया था। हाँ, याद है। अम्मी ने सर हिलाया। वह उसने बहुत पैसा कमाया है। वो मेरा सच्चा दोस्त है। वो मेरी मदद करने को तैयार है। उसने कहा है कि मुझे कर्जा देगा ताकि मैं नूर से शादी कर सकूं, मगर एक शर्त है। कौन सी शर्त? अम्मी ने फौरन पूछा। उसने कहा कि शादी के बाद मुझे उसके पास आना पड़ेगा। वहां जाके मैं दिन रात मेहनत करूंगा और उसका कर्जा जल्द से जल्द वापस करूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। मैंने नूर को भी बताया है। और नूर का क्या जवाब है? मैंने भाई से पूछा तो भाई ने कहा कि उसने कहा है कि मुझे ये शर्त मंजूर है क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम जरूर वापस आओगे। वो सिर्फ 1 हफ्ता मेरे साथ यहाँ गुजारना चाहती है, फिर मुझे इजाजत है कि अपना कर्जा उतारने के लिए अली के पास चला जाऊं। भाई ने एक गहरी सांस ली। अब मुझे सिर्फ अली के पैसे का इंतजार है। मुझे इतने पैसे भेज रहा है कि मैं एक छोटा सा मकान खरीद के फौरन उसकी रजिस्ट्री नूर के नाम करवा सकूं। अम्मी खामोश हो गई। उनके चेहरे पर परेशानी की जगह अब गहरा गम था। वो जानती थी कि उनका इकलौता बेटा चंद दिनों की खुशी के लिए अब एक तवील जिलावतनी इख्तियार करने जा रहा है। मैं भी भाई की मोहब्बत और उसकी बेबसी देख कर चुप हो गई। ये मोहब्बत थी या सौदा? मगर ये तय हो गया था कि मकान हमें हर हाल में खरीदना है। भाई को नूर को यहाँ लाना था और फिर जल्द ही खुद भी दूर जाना था। अली की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया। रानिया, भाई शाम को परेशान हाल घर लौटा। उसने अपनी जैकेट सोफे पे फेंकी और सर पे हाथ रख के बैठ गया।
मैंने उसे कल भी मैसेज किया था, कम से कम जवाब तो आना चाहिए था। आज सुबह भी नूर का फोन आया था, वो बहुत परेशान थी। क्या कहा उसने? अम्मी ने कमरे में आते हुए पूछा। भाई की यह हालत देख के खुद भी परेशान हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि दूसरा जो लड़का नूर से शादी करना चाहता है उसका अपना कारोबार है, अपना मकान है। भाई ने हाथ मलते हुए कहा, और वो लोग जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। नूर ने मुझसे साफ साफ बात की है। उसने कहा, अहमद मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, मगर मेरे घर वाले किसी भी सूरत मेरी शादी उस लड़के से कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो अभी कुछ नहीं है। भाई ने अपना सर दोनों हाथों में दबोच लिया। वो अगले ही हफ्ते मेरी शादी तय कर देंगे और तुम देखते रह जाओगे। ये कहाँ होगा नूर ने? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। रानिया बस करो, इसका मतलब है कि मुझे आखिरी मौका दे रही है। भाई ने मेरी तरफ घूर के देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे यूं ही हाथ से जाने दूंगा क्या? मेरी जिंदगी दांव पे लगी है। अहमद इतनी जल्दबाजी? अम्मी ने अपना हाथ भाई के कंधे पे रखा। तुम कर्जा ले रहे हो, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए जिसके माँ बाप तुम पे एतबार करने को तैयार नहीं है। क्या तुमने सोचा है कि इस कर्जे से निकलने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा? तुम जवान हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद तो मैं नूर के बगैर हो जाऊंगा अम्मी। भाई उठा और कमरे में चहलकदमी करने लगा। मैं नूर को खोने का खतरा मोल नहीं ले सकता। वो मेरी है और मैं ये शर्त हर हाल में पूरी करूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ और शहर के कुछ इलाकों में किसी छोटे से मकान की तलाश शुरू करता हूँ। मैं अभी एक मिनट भी जाया नहीं करूंगा। नूर को खोने का डर मेरे सर पे तलवार की तरह लटक रहा है और मैं वो तलवार टूटने नहीं दूंगा। भाई ये कह के फौरन बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और कमरे में गहरी खामोशी छा गई। अम्मी ने लंबी सांस ली और अपने आंसू पूंछे। रानिया देखना, ये मोहब्बत इसे वहां ले जाएगी जहां से वापसी मुश्किल होगी। अम्मी अब दुआ करें कि भाई का दोस्त उसकी मदद कर दे, वरना अहमद तो खुद को खत्म कर लेगा। हम माँ बेटी सिर्फ उसकी हालत देख देख के परेशान हो रहे थे। शाम को अहमद वापस आया तो बहुत खुश था। उसने आते ही कहा, अम्मी अली ने पैसे भेज दिए, वो मेरा सच्चा दोस्त है, उसे साबित कर दिया। कितनी रकम है? मैंने पूछा तो भाई ने कहा, इतनी कि एक छोटा सा मकान तो जरूर मिल जाएगा और नूर के नाम उसकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी। अली ने लिखा है, ये रकम तुम्हारी मोहब्बत के लिए, मगर ये ना भूलना कि ये सिर्फ कर्ज है। तुम्हें जल्द अज जल्द यहाँ आके कंपनी में काम शुरू करना होगा। दिन रात मेहनत करनी होगी ताकि ये कर्ज जल्द अज जल्द चुकाया जा सके। तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारे रहने और काम का बंदोबस्त मेरे जिम्मे होगा। मैं सुबह जाके फौरन पैसे निकालूंगा, मकान तलाश करूंगा और कल नूर के वालिद को उसे हक महर में दे दूंगा। एक मिनट भी अब मैं ज़ाया नहीं कर सकता। मुझे नूर के वालिद को फ़ोन करके ये भी बताना है कि मैंने इंतज़ाम कर लिया है ताकि वो कहीं और बात पक्की ना कर दें। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो गया? मैंने भाई से कहा तो वो बोला, अब सब कुछ जल्दी होगा रानिया, क्योंकि अब मेरे पास पैसा है और पैसे से हर मुश्किल का दरवाज़ा खुल जाता है। भाई ने अपने फ़ोन पे नंबर मिलाना शुरू किया। हेलो जी, मैं अहमद बोल रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आपकी शर्त पूरी करने का इंतज़ाम कर लिया है। मकान की रकम मेरे पास है, हम कल सुबह रजिस्ट्री का काम शुरू कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद भाई इत्मीनान से बैठ गया, फिर उसके चेहरे पे इत्मीनान फैल गया। शुक्रिया जी जी, बिल्कुल हम जल्द अज जल्द निकाह की तारीख रखेंगे। भाई ने फोन बंद किया। क्या कहा उन्होंने? अम्मी ने पूछा। उन्होंने कहा कि अगर मैंने कल सुबह तक उन्हें मकान के कागजात पे यकीन दिला दिया तो वो अगले हफ्ते की तारीख पक्की कर देंगे। भाई ने खुशी से कहा, मैं कामयाब हो गया अम्मी। रानिया, मैं नूर को खोने नहीं दूंगा और खुद को खोने के लिए तैयार हो गए हो। मेरे मुंह से ये जुमला निकलते ही मैंने अपने होंठ पीछ लिए। भाई ने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और बिजली की तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया और उसके कदमों की आवाज गली में गुम हो गई। अम्मी ने गहरी ठंडी सांस ली। ये लड़का कर्जे में डूबने के लिए कितना बेताब है। पैसा आ चुका था, खेल शुरू हो चुका था और ये वाज़े तौर पे नजर आ रहा था कि भाई की मोहब्बत के बदले नूर को इस घर की चाबी मिल रही थी, जो हमारे लिए भाई की दूरी का परवाना बनने वाला था। अगले 24 घंटों में सब कुछ बर्क रफ्तारी से हो गया। भाई ने मकान के मालिक को रकम दी, वकला के पास जाके कागजात बनवाए और नूर के वालिद से मुलाकात की। शाम होते होते भाई ने नूर के वालिद को मकान की रजिस्ट्री के मुकम्मल कागजात दिखा दिए। आपने कमाल कर दिया अहमद बेटे, नूर के वालिद ने हाथ मिलाया। हमें आपकी मोहब्बत पे यकीन हो गया है। नूर खुश रहेगी और बस सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि हमें तैयारी का मौका भी न मिला। रिश्ता मांगने से लेकर निकाह की तारीख तक सिर्फ 4 दिन लगे। भाई की जिद और नूर की शर्त ने सारे मामलात को हवा की रफ्तार दी थी। निकाह का दिन आ गया। नूर खूबसूरत लिबास में सजी हुई थी। हम लोग भाई के साथ बारात लेके नूर के घर गए। काजी साहब ने नूर से पूछा, बेटी अहमद वल्द मोहम्मद हुसैन का निकाह आपसे तय पाया है, क्या आपको कबूल है?
नूर ने एक लम्हे के लिए भाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक फातिहाना चमक थी। मुझे कबूल है। इसके बाद भाई का कबूल करना था। निकाह हो गया। नूर अब बाकायदा मेरे भाई अहमद की बीवी और इस मकान की मालिकन बन चुकी थी। निकाह और रुखसती का शोर थम चुका था। नूर बाकायदा हमारे किराए के घर की बहू बन के आ चुकी थी। एक ऐसा रिश्ता जो मोहब्बत की बुनियाद पे कम और माली मुआहदे की बुनियाद पे ज़्यादा कायम हुआ था। वो एक हफ्ता हमारे लिए किसी आर्जी ड्रामे से कम नहीं था। भाई ने नूर के साथ एक हफ्ता गुजारा। हर लम्हा उसकी खुशी का ख्याल रखा। वो नूर को बाजार ले जाता, उसके लिए तोहफे लाता। उसकी आंखों में नूर के लिए खालिस मोहब्बत थी। नूर भी उसके सामने एक फर्माबरदार और चाहने वाली बीवी का रूप निभाती रही, मगर मैं जानती थी कि ये सब महज अच्छी अदाकारी है। वो कभी अपने इस हक महर के मकान की बात नहीं करती थी, जैसे वो मकान उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता हो। नूर, तुमने उस नए घर को जाके देखा? भाई ने नूर से पूछा। अहमद, मुझे तुम्हारी जरूरत है, घर की नहीं। नूर ने फौरन भाई का हाथ थाम लिया। जहाँ तुम होगे वही मेरा घर है। मुझे किसी मकान की फिक्र नहीं। तुम देखना, मैं वहां जाके बहुत पैसा कमाऊंगा और जल्द ही तुम्हें और एक नया खूबसूरत घर खरीदूंगा, भाई ने जोश से कहा। नूर मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में एक सर्द चमक थी। ठीक 1 हफ्ता गुजर गया। 7वां दिन एक अजाब बन के तुलू हुआ। भाई को आज ही रात बाहर के मुल्क के लिए रवाना होना था। अली ने सारी तैयारियां कर ली और भाई का वीजा टिकट सब तैयार था। अम्मी, अपना ख्याल रखना। भाई ने अपना सूटकेस पकड़ा। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। अम्मी उसे देख के रो रही थी। बेटा, तुम जाते हो तो जाओ, मगर वादा करो जल्द वापस आओगे। अम्मी ने भाई को गले लगाया। मैं वादा करता हूँ अम्मी, मैं जल्द वापस आऊंगा। मेरा ये सफर नूर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। भाई ने अम्मी के आंसू पूंछे। अहमद, मुझे भी अपना सामान रखवा दे। नूर ने परस पकड़ा। तुम्हें कहाँ जाना है? भाई ने हैरानी से पूछा। मैं अपनी अम्मी के पास जा रही हूँ, जब तक तुम वापस नहीं आते। नूर ने सादगी से कहा। यहाँ मैं अकेली डर जाऊंगी और मेरे अब्बू चाहते हैं कि मैं उनके पास रहूं। हाँ ठीक है। भाई ने सूटकेस जमीन पर रखा। अम्मी, रानिया, नूर अपनी अम्मी के पास जा रही है। आप दोनों परेशान ना होना। मुझे यकीन हो गया कि उसका मकसद सिर्फ मकान हासिल करना था। अब जब भाई जा रहा था, उसे यहाँ रहने की क्या जरूरत थी? तुम अपना ख्याल रखना नूर। भाई ने नूर का माथा चूमा। उसके चेहरे पर जुदाई का गहरा गम था। तुम भी अपना ख्याल रखना। अहमद, नूर ने आंखें झुकाई। उसकी आवाज में वो रिकत नहीं थी जो एक नई नवेली दुल्हन में होनी चाहिए। भाई रुखसत होने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। अम्मी ने उसे दोबारा गले लगाया। मैं खामोशी से ये सब देख रही थी। मेरे दिल में भाई के लिए दुख और नूर के लिए शदीद नफरत बढ़ रही थी। अब चलता हूँ। भाई ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। नूर ने एक लम्हे के लिए भी मुड़ के नहीं देखा और फौरन टैक्सी को आवाज दी जो उसी का इंतजार कर रही थी। वो अपना सूटकेस लेके उसमें बैठ गई और चली गई। भाई का सफर शुरू हो चुका था और नूर अपने मैके चली गई। उसके बाद अगले कई दिन खामोशी छाई रही। फिर भाई का फोन आया कि वो अली के पास पहुंच गया है और काम शुरू कर दिया है। हमारी जिंदगी में सिर्फ खामोशी रह गई थी। 2 साल यूं ही गुजर गए। अहमद, अम्मी ने ठंडी आह भरी। वो फोन को कान से लगाए बैठी थी और भाई दूसरे मुल्क से बात कर रहा था। तुम बस कहते हो कि जल्द आऊंगा जल्द आऊंगा। ये कर्जा कब पूरा होगा? अम्मी, बस थोड़ा और वक्त दे दें। भाई की आवाज थकी हुई थी। अली का कर्ज बहुत बड़ा था। मैंने रात दिन एक करके आधे से ज्यादा चुका दिया है, मगर बाकी भी तो है। यहाँ के हालात बहुत सख्त हैं। और नूर, वो भी 2 साल से अपने मैके में बैठी है। अम्मी ने शिकवा किया। अम्मी, नूर जानती है कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ। भाई ने पर्दा डाला। मैं रोज उसे कॉल करता हूँ। वो हर बार यही कहती है कि अहमद, फिक्र ना करो, मैं इंतजार करूंगी। वो बहुत समझदार है। मैंने किचन के दरवाजे से झांक के देखा। भाई को सिर्फ नूर की जाहिरी बातों पर यकीन था। वो नहीं जानता था कि नूर का अपना निजाम चल रहा है। नूर इस दौरान अपने हक महर वाले मकान को किराए पर चढ़ा चुकी थी और उसका किराया बाकायदगी से खुद वसूल करती थी। अम्मी को भाई से फोन पे बात करते हुए देख के मैं दिल ही दिल में कुड़ती थी। भाई अपने वादे और कर्ज की जंजीर में जकड़ा हुआ था, जबकि नूर यहाँ बिल्कुल आजाद जिंदगी गुजार रही थी। अहमद, तुम कब वापस आओगे? मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अम्मी ने खांसते हुए कहा। उनकी सेहत वाकई गिर रही थी। अम्मी, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैंने अली से बात की है, वो मेरी मदद करेगा। मुझे जल्दी छुट्टी मिलेगी। मैं जल्दी आके नूर को अपने पास बुला लूंगा। अहमद, बस अपना ख्याल रखना। अम्मी ने फोन बंद कर दिया। उनके चेहरे पे गहरी मायूसी थी। अम्मी, आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? मैंने फौरन आगे बढ़ के उनके कंधे थपथपाए। रानिया, डॉक्टर को दिखाने से मेरा अहमद थोड़ी ना वापस आ जाएगा। अम्मी ने कहा और खामोश हो गई।
वक्त तेजी से गुजर रहा था। महीने फिर साल, भाई अपनी मेहनत में गर्क था और नूर अपने मायके में मुतमईन। इसी दौरान एक सुबह अम्मी का दम अचानक घुटने लगा। वो बिस्तर पे हाथ पैर मारने लगी। अम्मी क्या हुआ? मैं चीख के भागी, मगर अम्मी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं फौरन उन्हें लेके अस्पताल भागी। मैंने डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़े, मगर सब बेसूद रहा। दोपहर को अम्मा हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। मेरे लिए दुनिया वहीं रुक गई। मैं तन्हा हो चुकी थी। घर का सहारा मेरी पनाह का अम्मी की शक्ल में थी, वो भी खत्म हो चुका था। अब इस किराए के घर में मैं और नूर, वो भी सिर्फ नाम के रह गए थे। मैंने फौरन भाई को फोन लगाया, उसने नहीं उठाया। मैंने अली को फोन किया, कई बार किया, उसने तीसरी कॉल पे उठाया। अली भाई, अम्मी अम्मी नहीं रही। मैं ज़ारो कतार रोने लगी। क्या? अली की आवाज़ में हल्का सा खौफ था। ये क्या कह रही हो? जी, अम्मी का इंतकाल हो गया। भाई को खबर दे, फौरन उन्हें यहाँ आना होगा। मैं चीख रही थी। ठीक है, मैं उसे बताता हूँ, तुम हौसला रखो। अली ने फ़ोन बंद कर दिया। 2 घंटे बाद भाई की वीडियो कॉल आई। वो हथौड़े चलाने वाली जैकेट पहने हुए था। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। रानिया, सच बताओ, क्या ये मजाक है? भाई ने रोते हुए कहा। मैं ऐसा मजाक कैसे कर सकती हूँ अहमद भाई? मेरी आवाज भारी थी। अम्मी हमें छोड़ गई, वो इंतकाल कर गई। भाई स्क्रीन पे ही धड़ाम से कुर्सी पे गिर पड़ा। वो रो रहा था, मगर उसके रोने से मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। मुझे उस वक्त उसकी मौजूदगी की जरूरत थी। तुम जल्दी आओ भाई, हमें तुम्हारी जरूरत है। मैंने कहा तो वो बोला, नहीं रानिया, मैं नहीं आ सकता। भाई ने चीख के कहा। मैं नहीं आ सकता। भाई ने चीख के कहा। क्यों नहीं आ सकते? अली ने कहा है कि इस वक्त छुट्टी मिलना नामुमकिन है। मेरे पास अभी भी वीज़ा के कागजात और काम का इजाज़तनामा सिर्फ इसी वजह से है कि मैं यहाँ पे मुसलसल काम करता रहूँ। अगर मैं यहाँ से गया तो शायद वापस भी ना आ सकूँ और कर्ज भी पूरा ना कर पाऊँ। भाई ने अपना सर हाथों में ले लिया। मुझे माफ़ कर दो रानिया, मैं अपनी अम्मी का जनाजा भी नहीं देख सकता। मुझे गुस्सा आया। ये कैसी मजबूरी है जो माँ के प्यार पे भी भारी है? ये कर्ज है। अम्मी को मेरे और मोहल्ले वालों के सहारे सपुर्द खाक कर दिया गया। भाई वीडियो कॉल पे रोता रहा। वो एक बेबस बेटा था। अम्मी की वफात के बाद नूर मेरे पास आई। मैं आपके साथ ही रहूंगी रानिया, नूर ने सुगवार चेहरे से कहा। अब जब अहमद यहाँ नहीं और आंटी भी नहीं रही तो हम दोनों यहीं रहेंगे। आप तो अपने मायके में थी, यहाँ क्यों आई? मैंने सर्द लहजे में पूछा। अहमद ने कहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। मैं जानती थी कि वो क्यों आई है। अब जब अम्मी नहीं थी तो वो घर की मालिक बनना चाहती थी, लेकिन मेरे लिए उसके आने से खौफ और तन्हाई खत्म नहीं हुई। अम्मी की चारपाई खाली थी। घर और ज्यादा खौफनाक लग रहा था। तन्हाई का एहसास बढ़ता जा रहा था। अम्मी की वफात को चंद हफ्ते गुजर चुके थे। घर की फिजा पहले से ज्यादा बोझल और खौफनाक थी। नूर भाभी ने अपने वादे के मुताबिक मेरे साथ ही रहना शुरू कर दिया, मगर अब वो अम्मी की निगरानी में नहीं थी, इसलिए उसका रवैया पहले से ज्यादा लापरवाह हो चुका था। भाई का फोन आता तो वो बड़ी दिल सोजी से बात करती, मगर फोन रखते ही उसके चेहरे से वो मसनूई गम गायब हो जाता। एक रात मैं अपने कमरे में बिस्तर पे लेटी थी। बाहर चांद की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। घड़ी ने 12 का हिंसा छोड़ा। बिल्कुल उसी वक्त मेरे कानों में वो खौफनाक और घबराई हुई आवाज पड़ी। मुझे बचाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। आवाज नूर भाभी के कमरे से आई, जो मेरे कमरे से मुत्तसिल था। मैं धड़ से बिस्तर पर बैठ गई। मेरा दिल हलक में आ चुका था। ये क्या था? मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। मैं फौरन उठ के भाभी के कमरे के दरवाजे के पास गई और कुंडी पे हाथ रखा। दरवाजा अंदर से बंद था। भाभी, नूर भाभी, आप ठीक हैं? मैंने धीमी आवाज में पूछा। कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस गहरी खामोशी थी। मुझे लगा जैसे मैंने आवाज सुनी ही नहीं। मैं कुछ देर दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर खामोशी देख के वापस बिस्तर पे आ गई। मैं अपने आप को यकीन दिलाती रही कि शायद मेरे खौफ का वहम था, मगर अगली रात फिर यही हुआ। 12 बजे, बिल्कुल ठीक 12 बजे, वही डरी हुई सिसकियों भरी आवाज मेरे कमरे की दीवार को पार करती हुई आई। मुझे बचाओ, कोई है, मैं मर जाऊंगी। उस रात मैं फौरन भाभी के कमरे में नहीं गई, मगर मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं सारी रात जागती रही। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, जब घर में हम दोनों अकेली हैं तो नूर को किससे खतरा है? कौन उसे बार बार मारने की धमकी दे रहा है? अगले दिन मैंने भाभी से बात की। भाभी, रात आपके कमरे से आवाज आई थी। मैंने सहम के पूछा। नूर आराम से चाय पी रही थी। उसने मुझे हैरत से देखा। कौन सी आवाज रानिया? मैं तो आराम से सो रही थी। तुम कोई डरावनी फिल्म देख रही होगी। नहीं भाभी, एक बहुत खौफनाक आवाज आई, जैसे मदद मांग रहा हो। तुम्हें गलत फहमी हुई है। नूर ने फौरन मौजू बदल दिया। अहमद ने कॉल की थी। उसे कहा है कि अब वो मजीद मेहनत करेगा ताकि जल्द अज जल्द कर्ज खत्म हो जाए। तुम डरो नहीं।
اس نے بات ختم کر دی اور میں حیرت میں ڈوبی رہی۔ نور یا تو پاگل ہو رہی تھی یا کوئی مجھ سے چھپایا جانے والا راز تھا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ ہر رات 12 بجے یہ آواز میرے لیے ایک عذاب بن جاتی۔ میرا خوف اب حیرت اور تجسس میں بدل چکا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے اس حقیقت کو نہ جانا تو یا تو میرا بھائی ہمیشہ باہر ہی رہے گا یا نور کو سچ میں کچھ ہو جائے گا۔ مجھے اس پہ شک تھا۔ نہیں، اب بہت ہو گیا۔ ایک صبح میں نے فیصلہ کیا، آج رات میں یہ راز جان کے رہوں گی۔ میں نے وہ رات آخری رات قرار دی۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے کی کنڈی بند کی اور پھر شام ہوتے ہی میں نے نور کے کمرے کا جائزہ لیا۔ نور اس وقت لاؤنج میں چائے لے کے بیٹھی فون پہ کسی سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ پھر رات 10:30 بجے نور بھابی نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں سونے جا رہی ہوں، تم بھی سو جانا۔ جی ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ جیسے ہی نور اپنے کمرے میں گئی میں فوراً اٹھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں نے آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور بغیر کسی آواز کے نور کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں نے ہینڈل کو بہت دھیان سے موڑا۔ نور نے کنڈی نہیں لگائی تھی اور دوسری طرف کروٹ لے کے لیٹی تھی۔ میں نے دروازہ ہلکا سا کھولا اور پھسل کے اندر چلی گئی۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو بیڈ کے پیچھے چھپا لیا۔ بیڈ اور دیوار کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ میں بیٹھ سکتی تھی۔ میں نے اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اب میں انتظار کر رہی تھی اس خوفناک آواز کے دوبارہ آنے کا، اس 12 بجے کے لمحے کا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور گھڑی کے ٹک ٹک مجھے سنائی دے رہی تھی۔ 11:50 ہو چکے تھے اور یہ 10 منٹ میرے لیے کسی صدی سے کم نہیں تھے۔ میرا تجسس، میرا خوف اور بھائی کے حق میں جانے والا ایک فیصلہ سب میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ آج سارا سسپینس کھلنے والا تھا۔ ٹھیک 12 بجے کھڑکی کھلی اور یہ دیکھ کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ بھابھی نور کا موبائل فون زور سے بجا۔ میری سانسیں اٹک گئیں۔ یہ بھائی کا فون تھا۔ نور بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور میری طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئی۔ میں بیڈ کے پیچھے پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ ہیلو احمد، کیسے ہو؟ بھائی نے اپنا حال بتاتے ہوئے بغیر پوچھا۔ نور تم کیسی ہو؟ تمہاری آواز میں تھکن کیوں ہے؟ بھائی کی آواز اسپیکر سے ہلکی سے سنائی تھی۔ بس کیا بتاؤں احمد، امی کے جانے کے بعد سے مجھے اس گھر میں بہت خوف آتا ہے، نور نے ڈر کا ناٹک کرتے ہوئے کہا۔ ڈر؟ کیسا نور؟ رانیہ ہے نا تمہارے ساتھ؟ رانیہ تو اپنے کمرے میں سو جاتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے رات کو کوئی اس کمرے میں گھس آتا ہے۔ میں اپنی جگہ پہ ساکت بیٹھی تھی اور میری حیرت عروج پہ تھی۔ یہ ڈرامہ تھا۔ نور یہ سب جان بوجھ کے کر رہی تھی تاکہ بھائی کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ کون گھس آتا ہے؟ بھائی کی آواز میں پریشانی صاف تھی۔ مجھے نہیں معلوم، لگتا ہے جیسے کوئی میری جان لینا چاہتا ہے۔ میں بہت غیر محفوظ محسوس کر رہی ہوں احمد، تم پلیز آ جاؤ یا مجھے اپنے پاس بلوا لو۔ نور نے اپنے گالوں پہ ہلکا سا پانی مل کے رونے کا دکھاوا کیا۔ میری جان بس چند دن اور قرض ختم ہونے والا ہے۔ نور نے فوراً بیڈ سے اٹھ کے کھڑکی کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے کھڑکی کے کنارے کو چھوا۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھڑکی کا ایک پٹ پوری طرح سے کھل گیا۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا، مگر اس کے ساتھ ہی نور نے یکدم چلانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے فون کو ایک جھٹکے میں بیڈ پہ پھینک دیا جہاں بھائی کی ویڈیو کال اسکرین پہ چل رہی تھی اور اب بھائی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نور کیا ہوا؟ احمد مجھے بچا لو، وہ آ گئے مجھے مارنے، نور چیخ رہی تھی اور اس کے چہرے پہ ڈر کا کمال کا اظہار تھا، جیسے کوئی دشمن کمرے میں آ چکا ہو۔ میں جو بیڈ کے پیچھے بیٹھی تھی، میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ڈرامہ کر رہی تھی، وہ خود اپنی جان کو خطرہ دکھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہاتھ بڑھا کے بھائی کی کال کٹ کر دی اور پھر نور کی چیخیں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ وہ خاموش ہو کے بستر پہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی اور سانسیں تیز کرنے لگی۔ اسے بیڈ پہ پڑے فون کو ایک نظر دیکھا۔ احمد کو یقین ہو گیا ہوگا کہ اس کی بیوی کی جان کو یہاں سچ میں خطرہ ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نور کمرے سے باہر نکل گئی اور شاید وہ باورچی خانے میں پانی پینے چلی گئی۔ میں فوراً بیڈ کے پیچھے سے نکلی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا اور آہستگی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں ساری رات جاگتی رہی۔ مجھے اب ساری بات بالکل واضح ہو چکی تھی۔ وہ آواز، وہ خوف، وہ سب صرف بھائی کو دکھانے کا ڈرامہ تھا تاکہ وہ نور کو غیر محفوظ سمجھے اور اسے اپنے پاس بلا لے۔ وہ مکان جس کی ملکیت اسے چاہیے تھی اسے مل چکی تھی اور وہ اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی، اور یہ سب اس نے بہت ماہرانہ طریقے سے کیا تھا۔ اگلی صبح میرا خوف اور تجسس اطمینان میں بدل چکا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ صبح 10 بجے میرا فون زور سے بجا۔ یہ بھائی کی کال تھی۔ رانیہ، نور کہاں ہے؟ وہ کل رات چیخ رہی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ بھائی کی آواز میں خوف تھا۔ بھائی وہ بالکل ٹھیک ہے، بس اب اور نہیں، میں اپنی بیوی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا، بھائی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے کل رات ہی علی سے بات کر لی ہے۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا ہے کہ میں اپنا قرضہ آہستہ آہستہ چکاؤں گا، مگر نور کو یہاں سے فوراً نکالنا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے نور کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ بہت جلد باہر یہاں آ جائے گی، نور نے کہا، مگر ایک مسئلہ ہے رانیہ،
तुम वहाँ अकेली रह जाओगी, तुम्हारा कोई सहारा नहीं होगा। इसलिए मैंने अली से बात की है, वहाँ उसकी फैमिली रहती है, वो लोग तुम्हारा रिश्ता करवा सकते हैं। मैं दंग रह गई। अली की फैमिली? मगर मैंने अटक के बात की। रानिया, मैं अब तुम्हें वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। भाई ने फैसला सुना दिया। वो अच्छे लोग हैं, ये सब जल्दी होगा। इसी हफ्ते में तुम्हारा निकाह होगा और तुम अपने घर की हो जाओगी और नूर मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, भाई का फैसला ही आखिरी था। चंद दिनों में सब कुछ बर्क रफ्तारी से तय हो गया। भाई के दोस्त अली की फैमिली ने आके मुझे देखा। किसी ने मेरी मर्जी को अहमियत नहीं दी। रिश्ता तय हो गया और इसी हफ्ते के आखिर में सादगी से मेरा निकाह हो गया। मैं भी रुखसत होकर अपने घर की हो गई। नूर भाभी ने मुस्कुराते हुए मेरे निकाह में शिरकत की। वो बहुत खुश थी, जैसे उसका आखिरी टारगेट पूरा हो गया हो। मेरे जाते ही उसने फौरन बाहर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। अगले हफ्ते वो भाई के पास बैरून मुल्क चली गई। मैंने कभी भी ये बात अपने भाई को नहीं बताई कि उसकी बीवी ने ये सब ड्रामा जानबूझ के किया था। वो खौफ, वो चीखें, वो खिड़की का खुलना, ये सब सिर्फ भाई को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने का एक कामयाब मंसूबा था। भाई आज भी यही समझता है कि उसने नूर को एक बड़े खतरे से बचा लिया और वो आज भी नूर के साथ खुश है। मैंने सच को एक गहरा राज बना के अपने दिल में दफन कर दिया। वो सच्चाई जो भाई की मोहब्बत को तोड़ सकती थी, मैंने उसे पर्दे में छुपा दिया। और यूं मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी का ड्रामा नूर और मुझे दोनों को एक नई जिंदगी दे गया। मगर सिर्फ मैं ही जानती थी कि उसकी असल वजह क्या थी।